Good morning, dear class. Today we are going to continue our chapter fiber to fabric. बीच में कुछ गैप हो गया, उससे पहले हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे. उसी चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर में. नाउ वी ऑल नो दैट फाइबर इज कनेक्टेड टू क्लोथ्स बिकॉज फैब्रिक मीन्स क्लोथ्स. हाउ फ्रॉम फाइबर फैब्रिक इज मेड. So before moving on to this chapter, we should know why do we wear clothes. We already know that we wear clothes because they protect us from heat, they protect us from cold, and they make us look nice and decent. And in the earlier previous classes you learned that what is fiber. Fiber is the thinnest strand फ्रॉम विच फैब्रिक इज़ मेड. जिससे कपड़ा बनता है उसका सबसे छोटा स्ट्रैंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं. फाइबर इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें नेचर से मिलता है, और मैन मेड फाइबर वो फाइबर होता है जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं. Animal fiber. In this chapter we will basically focus on animal fibers. The common animal fibers we know are wool and silk. Wool we know we obtain from sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca. These are the animals which give us wool. And silk we obtain from silkworm. Silkworm is an insect. Here you see the pictures of sheep. इनके ऊपर these are the long hairs on their body. These hairs are cut and then from these hairs wool is made. Goat, long haired goat you see here. Yak, it is also having long hairs. Camel, these hairs are removed and then after cutting it becomes like this. Llama, it is found in South America. This is a animal based in South America. This is now this is silkworm. इससे हमें सिल्क मिलता है. नाउ लेट्स कम टू वूल. वूल से हम कैसे प्रोसेसिंग करके फैब्रिक बनता है. वूल वी नो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द hairs of these animals, llama, alpaca and camel, goat. इन एनिमल्स के एक थिक कोट ऑफ हेयर्स होता है इनकी बॉडी पे. और why this thick coat of hair is present on their body? This thick coat of hairs protect them from cold, because सर्दियों में इनके जो हेयर होते हैं इनके बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और एयर वी नो इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इनकी बॉडी हीट जो है बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती है. द थिक लेयर ऑफ हेयर keep their body warm and protects them from harsh cold. For obtaining wool, animals are reared and then their hair is cut and processed into wool. For obtaining, हम इनको obtain करने के लिए इन animals को rearing करते हैं, इनको हम domesticate करते हैं, इनको पालते हैं and then उनको process करते हैं, उनके hairs को cut करके process करते हैं और wool में convert करते हैं. Fleece and wool bearing animals. Fleece and wool bearing animals like sheep, goat, camel, yak bear two types of hair, coarse hair and fine soft under hair. इनकी बॉडी में दो तरह के हेयर्स होते हैं. coarse hair means rough hair and rough hairs से rough wool बनती है, एंड सॉफ्ट हेयर से हमें जो फाइन क्वालिटी की जो वूल मिलती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट हेयर्स. फाइन सॉफ्ट हेयर इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन इज in such animals. The fine soft under hair of the animals like sheep, goat is called fleece.
फ्लीस हम किसे कहते हैं? फाइन हेयर्स जो हमें गोट की या शीप की बॉडी पे मिलते हैं उसको हम फ्लीस कहते हैं. एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर फ्लीस ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वूल बियरिंग एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम वूल बियरिंग एनिमल्स कहते हैं. We call them wool bearing animals. Now, rearing and breeding of sheep. As you know, rearing means domesticating, उनको पालना, and breeding means उनको multiply करना. तो how it is done? Sheep are reared in many parts of our country like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. इन जगहों में शीप का मेनली रेयरिंग होता है. और व्हाट दे फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. दे आर ऑल्सो फेड विथ मिक्सचर्स ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. In winters, sheep are kept indoors and fed on leaves, greens and dry fodder. विंटर्स में हमें फॉडर की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे ड्राई फॉडर दिया जाता है और उनको इंडोर्स में रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड सो दैट दे डू नॉट डाई ऑफ कोल्ड. सम breeds of sheep have thick layers hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep of good breed. Now we know that we want more number of hairs. हमें ज़्यादा hairs चाहिए और अच्छी क्वालिटी के hairs चाहिए. तो ऐसे sheeps को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी जिनमें ये दोनों क्वालिटीज़ हों और उनको सेलेक्ट करवा के when breeding is done it is known as selective breeding. Now processing of wool. वूल को कैसे प्रोसेस करेंगे ताकि उससे फैब्रिक बने, कपड़ा बने. सो इट टेक्स प्लेस इन 6 steps. दिस इज़ ऑल आई एम रिवाइजिंग विच आई taught you before. This is all your revision. So you must be knowing this, I hope. These shearing, scoring, sorting, bird separation, dyeing and spinning. These are the steps. Shearing means removing of the hairs from the sheep or any other animal which bears wool, which bears hairs. After shearing, scoring is done, means these hairs are washed and dirt from the hairs are removed. Then after sorting is done, means we separate the hairs on the basis of their size. Then after burrs are removed, means such fibers which are fluffy are removed out of the hairs because they are of no use for us. They make the wool fiber little, means उनका टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं, इसलिए हम बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं. Then after dyeing, these fibers are then colored and then after they are spinned, rolled into wool. उनको फिर उसको रोलिंग कर देते हैं. These are the 6 steps. Processing of wool. The fleece, hair. Fleece means hair. Hair of the sheep is removed from its body along with a thin layer of dead skin by using machine. Hairs को remove किया जाता है, साथ में उनकी थोड़ी सी लेयर स्किन भी रिमूव हो जाती है, बट दैट स्किन इज़ डेड सो इट डजेंट अफेक्ट द शीप. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल इज़ कॉल्ड शेयरिंग. इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग, एज आई टोल्ड यू बिफोर. द sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. The process of washing the sheared wool in hot water followed by drying is called scoring. Now here you see this man is, what he is doing? He is cutting the hairs of this animal, and after
This is a scoring machine. This machine is used to do this thing. Now yarns. दो तरह के यान होते हैं, लॉन्ग यान एंड शॉर्टर यान. लॉन्गर यान का यूज़ स्वेटर्स, मफलर्स या सॉक्स बनाने में काम लिया जाता है, और शॉर्टर यान्स का यूज़ फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में लिया जाता है. नाउ यू सी वूल एंड यान. ये जो छोटे यान हैं इससे हमने धागे बना दिए, और मोटे जो यान था उससे वूल बन गया, वूलन क्लोथ्स बन गए. यूजेस ऑफ वूल. Wool is used for making warm clothes such as sweaters, cap, shawl, gloves and blanket. Wool is used in making carpets and upholstery. Now let's come to another animal fiber, silk. Silk fiber is obtained from cocoons of the silkworm, silk moth. Silk moth lives on the leaves of mulberry plants. कोकून से सिल्क वॉर्म को निकाला जाता है, जिसको हम मोथ भी बोलते हैं, और ये मलबरी लीव्स में ये रहते हैं. मलबरी शहतूत की पत्तियों में ये पाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ सिल्क. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर. डिपेंडिंग ऑन द सिल्क वॉर्म कैसा है उसके अकॉर्डिंग सिल्क की क्वालिटी डिपेंड करती है. अगर सिल्क वॉर्म अच्छी क्वालिटी का है तो दैट विल गिव यू अ लस्ट्रस सिल्क, एंड उसका टेक्सचर भी अच्छा होगा. तो सिल्क की अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, प्रजातियां होती हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. टसार सिल्क, मूगा हिल्स सिल्क, कोसा सिल्क. दीज आर सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ silk moth. Mulberry silk is the most common silk moth. Most common is mulberry silk. Now sericulture. Sericulture किसे कहते हैं? सिल्क वॉर्म को रेयर करना. जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, हम रेयरिंग करते हैं वूल गिविंग एनिमल्स की, वैसे ही हम इन इंसेक्ट्स की भी रेयरिंग करते हैं. इनको भी पाला जाता है और उसको हम कहते हैं, सिल्क को पालने को हम कहते हैं सेरीकल्चर. नाउ हेयर यू सी सिल्क मोथ. दिस इज मेल सिल्क worm and this is female silkworm. See here, you can clearly see the difference between the male and the female. Male is smaller in size and female silk moth is larger in size. Now history of silk. सिल्क आया कहाँ से, कब से हमने सिल्क के कपड़े बनाने स्टार्ट किए? सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था अराउंड 3500 बिफोर क्राइस्ट. अगर हम आज से देखें, आफ्टर क्राइस्ट वी आर हैविंग 2000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट वॉज 3500 बिफोर क्राइस्ट. सो इफ़ वी ऐड बोथ द ईयर्स then we can say that it was 5500 years before. 5500 साल लगभग पहले से सिल्क है. सिल्क became a prized possession because of its fine quality and luster. लोग पैसा देख करके, जो अमीर लोग होते थे उनके पास सिल्क हुआ करता था, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये चमकता है, इसीलिए सिर्फ एम्परर्स ही इसको यूज़ किया करते थे. It is the trade of the silk spread to other parts of the world over a period of time. Silk was a staple item of trade during ancient times. But बाद में धीरे धीरे इसका ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने लगा एंड लोग भी इसे यूज़ करने लगे. तो ड्यू टू दिस द एंशियंट ट्रेड रूट विच लिंक चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सिल्क रूट्स. सिल्क रूट, जो आज भी हमने सिल्क रूट के बारे में सुनते हैं, सिल्क रूट चाइना से स्टार्ट हुआ था और वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में पहुंचा था, बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन टेकिंग सिल्क, इन हैविंग क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. सो चाइना यूज्ड टू ट्रेड दिस सिल्क.
बट कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि सिल्क सबसे पहले सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। प्रूफ ऑफ यूज़ ऑफ सिल्क, कुछ प्रूफ भी हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें इसकी कुछ प्रूफ मिलते हैं। नाउ लेट्स, हिस्ट्री इज़ completed, नाउ लेट्स कम टू द लाइफ साइकिल। हाउ सिल्क वॉर्म इज़ reared एंड सिल्क इज़ obtained। 4 स्टेजेस होती हैं सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल की। पहले एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। पहले एग निकलता है, एग हैच होके लार्वा बनता है, लार्वा की साइज़ थोड़ी बड़ी होकर प्यूपा बनती है और फिर वो एडल्ट बनता है। फीमेल सिल्क मोथ lays eggs. Females, after about 14 days, eggs are hatched into larva. Eggs, फीमेल सिल्क मोथ एग्स ले करती है और 14 दिन बाद में वो लार्वा बन जाते हैं। लार्वा को हम, सिल्क के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। और वो कैटरपिलर ग्रो होकर के प्यूपा बन जाता है और प्यूपा फाइबर सिक्रेट करता है जो कि प्रोटीन से बना होता है एंड वेव्स द फाइबर अराउंड इट्सेल्फ कम्प्लीटली। प्यूपा अपने आप को कवर कर लेता है, उसके स्लाइवा से, उसके माउथ से फाइबर सिक्रेट होता है और वो उस फाइबर को अपने चारों तरफ कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज़ कॉल्ड कोकून, इसको हम कोकून बोलते हैं। लिव इन द कोकून फॉर सम टाइम, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कोकून ग्रो इनटू सिल्क मोथ। ये उस कोकून के अंदर, जो कवरिंग इसने खुद ने बनाई है, उसके अंदर रहता है कुछ टाइम तक और उसके बाद में सिल्क मोथ बन के, सिल्क मोथ बन के वो बाहर आ जाता है। बट हम जब सिल्क निकालते हैं तो हम उसको सिल्क मोथ वाली स्टेज पे आने ही नहीं देते, हम उसे पहले ही सेपरेट कर लेते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है। नाउ एडल्ट सिल्क मोथ, एडल्ट सिल्क मोथ लाइक फीमेल सिल्क मोथ, इसने क्या किया, एग लेस किए। दीज आर द एग्स, एग्स डेवलप होके किस में कन्वर्ट हो गए, प्यूपा में। प्यूपा किस में कन्वर्ट हो गया, मॉथ में। और ये जो है, ये चारों तरफ ये क्या है, कोकून। दिस इज कोकून। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये किसके ऊपर डेवलप, क्या खाते हैं ये, शहतूत की पत्तियों पे ये ग्रो करते हैं, शहतूत की पत्तियाँ ये खाते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व्स these 4 steps. rearing means उनको डेवलप करना, डोमेस्टिकेट करना, देन रीलिंग, देन डाइंग, इनकी कलरिंग की जाती है, एंड आफ्टर डाइंग दीज आर स्पिन, उनको स्पिन करके वेव किया जाता है। rearing of silk worms, the female silk moth lays eggs are stored over a clean cloth or paper stripes. The eggs are warmed to a suitable temperature. जब हम उसे मैनुअली ये काम करते हैं तो उसको हम, एग्स को हम स्टोर कर लेते हैं पेपर्स में और फिर उसको एक वार्म टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है। जब हम उसे सूटेबल हीट देते हैं तो एग्स हैच हो जाते हैं, मीन्स एग्स ब्रेक एंड लार्वा कम्स आउट, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, देन या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। इन सिल्क वॉर्म्स को हम बैम्बू ट्रे में रखा जाता है और उनको मलबरी लीव्स दी जाती हैं टू फीड। दे ईट द मलबरी लीव्स एंड दे ग्रो इन द साइज। 30 से 40 दिनों में सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को फीड करके अपने चारों तरफ एक स्पिन बना लेती है और 30 से 40 दिन बाद में वो खाना बंद कर देती है। और कोकून जो बनाती है चारों तरफ वो हार्ड होता है, क्योंकि जैसे ही एयर का एक्सपोजर होता है वो हार्ड हो जाता है और उसके अंदर सिल्क वॉर्म रहता है जो कि किस में डेवलप हो जाता है, सिल्क मोथ में।
Here you see the life cycle. This is female, this is female silk moth, this is laying eggs, these are the eggs, then this is caterpillar, और ये क्या बन गया, कोकून. ये इसने अपने चारों तरफ कोकून बनाया और इस कोकून को हमने सेपरेट कर लिया, और उसके बाद में लास्ट में हमें ये प्रोसेस्ड सिल्क मिल गया. और इस सिल्क को से हमने वेव किया, स्पिन किया, और स्पिन करके हमने छोटे छोटे धागे बनाए, और इन धागों को अरेंज करके सी हेयर द ब्यूटीफुल क्लोथ्स आर मेड. रीलिंग ऑफ सिल्क. The cocoons are collected and kept in sunlight or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. कोकून्स को कैसे, सिल्क फाइबर्स कैसे निकाले जाते हैं. हमें पता है कोकून के अंदर सिल्क मोथ रहता है, बट उनको सबको कोकून के साथ में ही या तो सनलाइट में एक्सपोजर किया जाता है, तो सनलाइट की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं, या फिर उनको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है और सिल्क फाइबर कोकून हमें अलग हो जाते हैं. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सिल्क वार्म वाली कंडीशन में नहीं आ पाता, उसको पहले ही हम सेपरेट कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून इज़ कॉल्ड रीलिंग. इस प्रोसेस को, सिल्क थ्रेड को हम निकाल रहे हैं कोकून से बाय पुटिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर. It is called reeling. Reeling is done by machines. ये देखिए. Now after reeling, dyeing means coloring. They are given different beautiful colors and then they are spinned. Yeah, this here it is. ये यहाँ पे क्या हो रही है, spinning हो रही है. This is spinning. तो after that they are spin and waved. The silk fibers are then spun into thread and woven into different fabrics. Uses of silk. सिल्क का यूज़ क्या है, फैब्रिक बनाने के काम आता है, बट दिस फैब्रिक इज़ क्वाइट कॉस्टली. महंगा क्यों होता है, बिकॉज इसमें कितना लंबा प्रोसेस है. पहले हमने सिल्क मोथ लिए, फिर उस एग हैच करवाए, फिर उसको डेवलप किया 30 to 40 डेज़ में, फिर उसके बाद में उनका रीलिंग किया. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, एंड उससे लस्ट्रस हमें फाइबर्स मिलते हैं. सिल्क फाइबर इज़ यूज्ड फॉर वेविंग clothes, especially traditional dresses in India like sari, kurta, shawl and other wedding clothes. Silk had usually been prized for its luster and fine quality. इसकी चमक और इसकी फाइन क्वालिटी की वजह से इसका प्राइस हाई होता है. Countries which produce silk on large scale are China, first rank, and then after India. Hope you enjoyed this chapter. You have lots of learning in this chapter, and you have to write the key points of this chapter in your homework copy. Stay at home. Have a happy learning. Thank you, children.